اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّا مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 72 اور 73 تلاوت کی ہے۔ ان دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جن کے ایمان بڑے کمزور ہوتے ہیں یا پھر وہ منافق ہوتے ہیں، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب انہیں جہاد کے لیے بلایا جاتا ہے تو وہ گھر بیٹھ جاتے ہیں، تاخیر کرتے ہیں، آتے ہی نہیں ہیں۔ اگر مسلمان جہاد پر جائیں اور شکست کھا جائیں یا شہید ہو جائیں تو وہ بڑے خوشی سے کہتے ہیں اللہ کا ہم پر بڑا فضل ہوا ہے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں تھے، یعنی ہم جہاد پر نہیں گئے تھے۔ اگر ہم جاتے تو ہم بھی مصیبت میں پڑ جاتے، ہم بھی قتل ہو جاتے یا ہمارا نقصان ہو جاتا، تو اس لیے ہم تو بچ گئے، اس طرح کا خیال کرتے ہیں۔ اور جب مسلمان جہاد پر جائیں اور فتح و کامرانی سے آئیں، یعنی فتح ہو جائے اور مال غنیمت بھی لے آئیں، تو پھر یہ لوگ جو منافق اور کمزور دل والے، کمزور ایمان والے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی حسرت سے کہتے ہیں کاش ہم ان کے ساتھ گئے ہوتے تو آج ہم بھی یہ مال غنیمت لے کر بڑے خوشحال ہو گئے ہوتے۔ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں اور کمزور ایمان والوں کا نقشہ ان دو آیات میں بڑا خوبصورتی سے کھینچا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِنَّا، اور بے شک، مِنْکُم، تم میں سے، یعنی یہ منافق اور کمزور ایمان والے تمہارے اندر ہی ہوتے ہیں مسلمانوں میں۔ وَإِنَّ مِنْکُم لَمَن يُبَطِّئَنَّ، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ مِنْکُم، کہ بے شک تم میں سے، لمن، کوئی شخص ایسا بھی ہوتا ہے جو تم میں ملا جلا ہوتا ہے، منافق ہو یا وہ کمزور ایمان والا۔ اللہ فرماتا ہے لا یبطئن، جو دیر لگاتا ہے، یعنی گھر بیٹھ جاتا ہے، جب اس کو جہاد کا کہا جاتا ہے تو گھر بیٹھ جاتا ہے۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِیبَةٌ، فَإِنْ، پس اگر، أَصَابَتْكُم مُّصِیبَةٌ، تم پر کوئی مصیبت پڑتی ہے، جیسے اگر شکست ہو جائے یا مسلمان شہید ہو جائے، یا تم پر جب کوئی مصیبت پڑتی ہے، اللہ فرماتا ہے قالا، پھر یہ کہتا ہے قد انعم اللہ، کہ اللہ نے تو میرے اوپر بڑا انعام فرمایا، بڑا کرم کیا، علیہ، یعنی میرے اوپر، اذ لم اکم معہم شہیدہ، اذ لم، کہ جب کہ میں، اکم معہم شہیدہ، جب کہ میں ان کے ساتھ موجود نہیں تھا، یعنی میرے اوپر اللہ کا کرم ہو گیا، میں ان کے ساتھ موجود نہیں تھا، اگر موجود ہوتا تو میں بھی شہید ہو جاتا، یعنی مطلب مر جاتا۔ یہ وہ شہید تو وہ ان کا، کیونکہ اس طرح کا خیال ہے، جبکہ اگر وہ ان کا ایمان پکا ہوتا، شہادت تو ہمیشہ کی زندگی ہوتی ہے۔ اس آیت کو اگلی آیت کے ساتھ ملایا کیونکہ اگلی آیت بھی منافقین کے لیے ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگلی آیت میں وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ،
वाला इन असाबकुम फदलुन, और अगर तुम पर अल्लाह का फजल हो जाए, मिनल्लाह यानी अल्लाह का, वाला इन असाबकुम फदलुम मिनल्लाह, और अगर तुम पर अल्लाह का फजल हो जाए, ला यकूलन्ना, तो फिर ये ज़रूर कहेगा, का अल्लम तकुम बैनकुम व बैनहु मवद्दतुन, जबकि उसके और तुम्हारे दरमियान कोई दोस्ती नहीं थी, कोई ताल्लुकात मोहब्बत वाले नहीं थे। तो ये बंदा क्या कहेगा, या लाइतनी, अफसोस करता है, काश, या लाइतनी, यह काश, अफसोस, कुन तो माअहुम, काश मैं उनके साथ होता, व अफूज़ फौजन अजीमा, तो बड़ी मुराद पाता, यानी मैं भी मालदार हो जाता, इस तरह मेरे पास ये माल गनीमत होता, मैं भी बड़ा अमीर तरीन हो जाता। एक दो फिर इसको पढ़ते हैं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इन दो आयात में, व इन्ना मिनकुम लमल्ला युबत्ति अन्ना फ इन असाबतकुम मुसीबतुन काला कद अनअमल्लाहु अलैया इज़ लम अकुम मअहुम शहीदा वला इन असाबकुम फदलुम मिनल्लाहि ला यकूलन्ना कअल्लम तकुम बैनकुम व बैनहु मवद्दतुन या लाइतनी कुन्तु मअहुम फअफूज़ फौजन अजीमा। तो अल्लाह ताला ने इन दो आयात में इरशाद फरमाया, और बेशक तुम में से ऐसा शख्स भी मौजूद है जो देर लगा देता है, यानी जब उसको जिहाद का कहा जाता है कि चलो, तो वो देर लगाता है, घर बैठ जाता है। फिर अगर तुम्हें कोई मुसीबत पहुँचे तो कहता है बेशक अल्लाह ने मुझ पर बड़ा करम किया, यानी मैं मुसीबत से बच गया, अगर वहाँ उनके साथ चला जाता तो मैं भी मुसीबत में होता। तो अल्लाह फरमाता है जबकि मैं उनके साथ, ये कहता है, मैं मौजूद न था। और अगर तुम पर अल्लाह का फजल हो जाए तो ज़रूर कहेगा कि जबकि तुम्हारे और उसके दरमियान कोई दोस्ताना ताल्लुक़ तो नहीं था, लेकिन वो कहता है काश मैं उनके साथ होता तो बड़ी मुराद पाता। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया पहली आयत में कि और तुम में से कोई शख्स ऐसा भी है जो जिहाद में शरीक होने में ताख़ीर करता है और मुजाहिदीन के साथ निकलने में टाल मटोल करता है, शरीक नहीं होता जिहाद में। अगर आप पर कोई मुसीबत आ पड़े, यानी शिकस्त हो जाए या मुसलमान शहीद हो जाए, तो फिर ये खुश होकर कहता है वाकई अल्लाह ने मुझ पर बड़ा फजल किया कि मैं मुजाहिदीन के साथ जिहाद में मौजूद न था, वरना उस मुसीबत में मैं भी मुब्तला हो जाता, यानी मुझे भी मार दिया जाता या इस तरह। तो इस तरह की बात ये पहली आयत में। दूसरी आयत का बामुहावरा तर्जुमा इस तरह है कि अगर आप पर अल्लाह ताला का फजल व करम हो गया, यानी आप पर अल्लाह ताला का फजल व करम जब हो जाता है, फ़तह हो गई या गनीमत मिल गई, तो ये ख़ुद गर्ज़ मुनाफिक जिसका आपसे कोई दोस्ताना ताल्लुक़ था ही नहीं, तो फिर यूँ कहता है कि कितना अच्छा होता कि मैं उन मुजाहिदीन के साथ होता और उनके शरीक हाल रहता, तो मुझे भी बड़ी कामयाबी हासिल होती और मैं भी कामयाब हो जाता, यानी मुझे माल गनीमत मिल जाता। इस तरह का ये था। अब्दुल्ला बिन अबी जो था वो भी मुनाफिकों का सरदार था, वो भी मुसलमानों को, जो कमज़ोर ईमान वाले मुसलमान थे, उनको बड़ी बड़ी आसानी से वो परसुएड कर लेता था कि भाई आप जिहाद पर ना जाएं तो कत्ल कर दिए जाएंगे, तो इस तरह आपके वो नुकसान होगा, तो आपके बच्चे हैं पीछे, फलां है, वो बहुत सारी बातें करके उनको ऐसे पीछे रख लेता, ना खुद जाता था ना दूसरों को भी इस तरफ लगाता था। तो इस तरह की हालत थी। और वैसे भी आप देखें कि बाज़ लोग जो जानबूझकर सुस्ती करते हैं, जिहाद का हुक्म आ जाए और जाते नहीं हैं, बल्कि जानबूझकर सुस्ती करते हैं, घर में बैठ जाते हैं और कहते हैं कि अगर हम जाएं तो ये तो ऐसे है हमारे लिए जैसे अपने आप को कत्ल करना है। जंग ओहद जो थी ना, उसके अंदर अल्लाह ताला ने कमज़ोर ईमान वालों का और मुनाफिकों का कच्चा चट्टा खोल दिया, बता दिया कि मुनाफिक कौन है और कमज़ोर ईमान वाले कौन हैं। मुसलमानों में अक्सर ऐसे लोग भी होते हैं जिनके ईमान बदलते हालात के साथ बदल जाते हैं,
ये बहुत कसरत से होते हैं। इनका ईमान कमज़ोर होता है, दुनियावी मफाद इनके नज़र में रहता है। ये मुनाफिकों के हत्थे आसानी से चढ़ जाते हैं। आप गौर करें कि जब अल्लाह ताला मुसलमानों को जिहाद में फ़तह और गनीमत अता फरमाता है, तो यही जो घर में बैठ जाने वाला मुनाफिक होता है या कमज़ोर ईमान वाला होता है, वो हसरत से कहता है, ऐ काश अगर मैं उन लोगों के हमरा होता तो बड़ा कामयाब होता, मुझे भी खूब माल मिल जाता, यानी माल गनीमत मिल जाता, जबकि आपका इन लोगों से दोस्ताना ताल्लुक़ भी नहीं। यहाँ पर अल्लाह ताला ने इस आयत में ये फरमाया कि कअल्लम तकुम बैनकुम व बैनहु मवद्दतुन। तो अल्लाह ताला ने फरमाया इन मुनाफिकों के, इन लोगों के और आपके दरमियान कोई ताल्लुक़ भी नहीं था, मोहब्बत का, दोस्ती का। और वैसे भी जो है ना, जब पता चल जाए कि किसी शख्स के बारे में कि ये मुनाफिक है, उसके साथ दोस्ती करना फजूल है, अपने आप को नुकसान देना है या अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मारनी है। तो इसलिए जब पता चल जाए कि बंदा मुनाफिक है, जो आपके साथ बहुत करीब आने की कोशिश कर रहा है, तो फिर आप उसके साथ दोस्ती ना करें। इस आयत ने हमें सिखा दिया है, क्योंकि ऐसा शख्स ज़ाहिरी तौर पर तो फ़ायदा देगा आपको, लेकिन वो अंदरूनी तौर पर बड़ा नुकसान कर देगा, फिर आप रोएंगे। तो इसलिए मुनाफिक का पता चल जाए तो फिर उससे ज़रा दूर रहें, उसके साथ दोस्ती ताल्लुक़ ज़रा कम करें, और इस तरह से दोस्ती अगर करेंगे तो नुकसान पाएंगे। याद रखें कि दुश्मन का मुकाबला करने के लिए मज़बूत ईमान और तवक्कुल अल्लाह बहुत ज़रूरी है। इसलिए मुसलमानों की सफ़ों में इत्तेहाद, इत्तफ़ाक़ और हम आहंगी इसी ईमान और तवक्कुल अल्लाह से पैदा होती है। मुनाफिक का ईमान कामिल नहीं होता, इरादा पुख्ता नहीं होता, उसका अल्लाह पर तवक्कुल होता ही नहीं है, यानी तवक्कुल अल्लाह का फुक़दान होता है। तो इस मुनाफिक की नज़र में आखरत नहीं होती, बल्कि दुनियावी मफाद होता है। ये दुश्मनों के साथ गठजोड़ करके मुसलमानों की जमात में दरारें डालने वाले होते हैं। ये अल्लाह से नहीं डरते, बल्कि दुनिया से डरते हैं। जंग ओहद में आप गौर करें, वहाँ ये मुनाफिक जो जंग ओहद में नहीं गए थे, जो अब्दुल्ला बिन अबी जो था 300 बंदों को साथ लेकर वापस चला गया था, जो मुनाफिकों को साथ लेकर दरमियान में रास्ते में से, तो वो मुनाफिक फिर खुश हो गए थे। और जब देखा कि मुसलमान शहीद हो गए, 70 मुसलमान शहीद हो गए, तो वो बड़े खुश हुए और वो कहते थे अल्लाह ताला ने हम पर बड़ा फजल किया कि हमें बचा लिया और हमें उधर जाने नहीं दिया, तो हमारी जान बच गई, तो ये तो अल्लाह ताला ने हम पे करम किया। तो हम मुसलमानों की फ़ौज में अगर शामिल होते तो हमें कत्ल कर दिया जाता। तो इस तरह के लोग हैं ये। और मुनाफिक ये होते हैं, यही मुनाफिक होते हैं जो दुश्मनों से गठजोड़ करके और मुसलमानों में शकूक व शुबहात पैदा करते हैं और दुश्मनों की चालों को कामयाब कराने में बड़ा किरदार अदा करते हैं। हीले बहाने से जो कमज़ोर ईमान वाले होते हैं उनको भी अपने साथ मिला लेते हैं, और माल की हवस, दुनियावी आसाइश इनका मतमय नज़र होती है। ये खुद गर्ज लोग, मौका पाकर नुकसान पहुंचाने वाले, और ये हमेशा लालची और मफाद परस्त होते हैं। लिहाजा इनसे होशियार रहने की बहुत ज़रूरत है। और याद रखें, जो ज़िंदा कौमें होती हैं वो अपने दिफा से गाफिल नहीं होती, इसलिए हमेशा अपने दिफा को मज़बूत बनाएं और अपने ईमान को भी और तवक्कुल अल्लाह के साथ अपने अंदर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्माबरदारी का मज़बूत जज्बा पैदा करें, ताकि दुनिया में जहाँ भी ज़रूरत हो अल्लाह के हुक्म से आप पेश हों और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को पूरा करके इस दुनिया से सुरखरू हो जाएं। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। आमीन।